Is winner to take home rupees 4,44,444. Runners up will get rupees 3,33,333. Also, we have third and the fourth place. Meanwhile, game between Reliance Aronda and Shree Sports Devbag. Nicely played, straight to the man. Chance of run out. Direct hit could be curtains, but not quite. And overthrows. Poor backing up. And another run has been taken. So 2 in total. Couple of runs to Gaurav. Gaurav along with Vicky, opening partners of the Shree Sports Devbag. Aronda choosing to bowl first after winning the toss. Roshan. Nicely played down the ground, over the field. And that will be very well stopped. 2 more runs have been added. Yesterday it was Dhruv Warriors Parsim reaching the semi-finals. Which team will it be reaching the semi-finals today? Story so far of this tournament have been drop catches. Drop catches have been very crucial. Those drop catches have provided some chances to the batsmen and they have excelled. Swing missed. Just now previous game unfolded. And it was the Indian Capitals who dropped a few catches. Chances were given to them. They shelled them and had to pay price. They are going home after losing that game against the defending champions Hodauda. Nicely played down the ground. Straight to the fielder. Chance of run out. Oh, not quite. Direct hit would have been in danger. Gaurav, but not to be. Score moves on to 5. We're live on YouTube through tenniscricket.in. Jump online, download the link, and you can view all the games, yesterday's as well as today's, through tenniscricket.in. Clarity pristine, just like water. Gaurav and his team is doing a fantastic job for a couple of days. Short pitch delivery in the air. And that's gone. Slower delivery, just wanted to guide it on the onside. Got a leading edge and the first wicket down. It's Vicky who is heading back for a golden duck. Thank you, DJ. SS Audio. In the air, just cleared the field at covers. And will be a couple of runs to Ganpat. 2 more runs have been added after completion of the first. It's 7. 7 for 1 after 1. Shree Sports Devbag.
Guru Prasad. 7 for 1 after 1. And welcome to the bowling craze. Straight down the ground. Oh, that long off fielder's head for a 6. Score moves on to 13. Thank you, DJ. Short pitch delivery, flat batted, just over that man. Again running towards the boundary and 4 more. No chance for that fielder, no matter how quick you are. That went like a tracer bullet. Score quickly on to 17. 2 deliveries, 10 runs. In the air, fielder again, mere spectator. It's gone over his head. Again over long off's head. Score moves to 23 with that maximum. Keeper is standing up to the stumps now. Again, big hit down the ground, fielder. And that's gone for 4. Just wanted to get it in play, but couldn't quite stop it. Thank you, DJ. 20 runs of 4 deliveries so far. Score moves on to 27. Nicely played, looking for the couple. By the time the fielder could come, collect and throw it back, 2 more runs have been added. Score moves to 29. This has been a productive over so far. 22 runs from it. 29 on the board. Ganpat along with Roshan. Ganpat along with Gaurav. Getting those 2 runs. Final delivery of the second over. Full toss, delivery missed. Thickish outside edge, but no damage done. A dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 29. 29 for 1 after 2 overs. Shree Sports, Devbag. BMO, don't bring the memories back of this frustrating February. Meanwhile, jokes apart, Soham. Again adjusting the field.
Maybe a man at long on has been brought a little straighter. Full toss, that's a no ball. And that's gone all the way for 6. Half doesn't work. And Dumba gets some work. Score moves to 36 and it's a free hit time. No proper timing on that one. Down to deep mid wicket. We'll be looking to just get a single. Yeah, single. Score moves to 37. 37 on the board. Third over in progress. 8 overs game this. First 2 overs mandatory power play over. And till 6th you can take one more, that is batting power play over. Let that one go, that's a wide, extras. Score moves to 38. That will be another no ball, a beamer. And that will be free hit. Or the bowler he has to finish his spell. He's bowled 2 no balls, so the bowler will be changed, definitely. Yes, he cannot bowl more. Apologies from upstairs. Looks like he's continuing. Maybe one was away from the body and one directly. So it's away from the body. So that is fine. So free hit time again. Down the ground, in the air. Taken, won't be given out. Will be just a single, as it was a free hit. Score moves to 41. Third over in progress. The kind of batting these two are showing us, maybe definitely around 90, 100 will be a good total on this wicket. Down the ground again. Couple of bounces into the hands of the fielder, will be a single. Score moves to 42. Terrific batting so far. Ganpat along with Gaurav. Down the ground, in the air, and taken. Bowler has the last laugh. And it's Gaurav. In fact, it's Ganpat who is heading back to the pavilion. It's 42 for 2. Full toss delivery.
smashed it down the ground, just pushed it. We'll be looking for the second one and we'll get it quite comfortably. 2 more runs have been added. Score moves on to 44. 44 for the loss of 2 wickets after 3 overs. Sri Sports Devbag. In fact, still a delivery left in this over. 2 no balls wide. Just becoming lengthy this particular over. Nicely bowled at time in the block hole, but still will be getting a single. Tall man Darshan ducked it out and a single has been taken. So after completion of 5, it's 45. In fact, 3, it's 45. 45 for and this is a batting power play over. So 3 fielders will be on the boundary rope. Wideish long off. Long on and deep mid wicket on the boundary rope, whereas rest in the 30-yard circle against Darshan. Nicely guided, looking for a couple and will definitely make it quite comfortably. Tall man, 6 or 7 steps to the other side and back again. Easy work for him. Just jogging at the moment, not really pushing himself. Score moves on to 47. Going at just over 15 runs per over. Team from Devbag. In the air, chance fielder takes it and the big man is heading back cheaply for just 4-5 to his name. Darshan Bandekar looking to go downtown and hitting the toe end of the bat. Bat just sliding in his hands and then taken by Roshan. Rohan gets his bat. New man in is Nitin. 47 for 3. Nicely bowled and gone. Another wicket fall. Just the left armour is doing some magic in the middle. First he got rid of Darshan. Now he gets Nitin on the very first rock. He's gone for a golden duck.
from Rohan. Oh, drop that's gone through. Would have been the second hat-trick of this particular edition. Yesterday it was Sachin Parji. Now it would have been Rohan. Not to be. In the air, chance, fielder backpedaling. And taken again by Roshan. Roshan and Rohan again in tandem and sends the Roshan from other team back in the dugout. Half side done packing of Shree Sports Devbag. It's 40. Three particular over. Can it be fourth? Oh no! Just missed the stumps. A well settled batsman, Gaurav would have been gone as well. But not to be. 48 after 4 overs. 48 for the loss of 5. Shree Sports Devbag put into bat by Reliance Aronda. Excellent over coming to an end. Just 3 runs from it and 3 wickets. Meanwhile, change in voice. It will be Yogesh Parab. नाखुश केलंय. दर्शनच्या बंधूनं नितीन बांदेकर 0 धावसंख्येवर. त्यानंतर रोशन धुरी 0 धावसंख्येवर माघारी परतलाय. आणि एका बाजूनं मैदानाभर गौरव आणि गॉडविन डिसोजा ही जोडी मैदानाभर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज आलाय तो हर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. समोर आहे गॉडविन. नाव स्ट्राईकला आहे गॉडविन. सलामीला आलेला फलंदाज या मैदानाभर गौरव आणि गॉडविन ही जोडी मैदानाभर. स्ट्राईकला गॉडविन सज्ज आले. 4 षटकांचा मध्यंतराचा खेळ संपुष्ट झाला. 48 धावा धावफलकावर प्रति षटका 12च्या सरासरीनं श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघ खेळतोय. पण रोहनचं कौतुक करावं लागेल. उलटो चेंडू होता. आडव्या बॅटला फटका बसलाय. स्क्रीन समोर जॉन बहुतेक करून होता. लेगला सुटलं असेल मैदानाभर. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत केली हर्षने उभरत्या सितारानं. सुटलेलं झेल या मैदानावर एकेरी धावसंख्येसाठी आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 49 धावा धावफलकावर. रोहन नाईकनं सुंदर गोलंदाजी केली. दर्शन बांदेकरला त्यानं बाद केलं झेलबादच्या स्वरूपात. रोशनला बाद केला. नितीनला बाद केलंय. हा त्याचा लेखाजोखा आहे. आज आपल्या गावासाठी तो पण मुंबईवरून खेळण्यासाठी आलाय. पुलटॉस चेंडू होता. फटका फसलाय. सेम अँड स्क्रीनवर रोशन पाहायला मिळतोय. सुंदर झेल टिपलेत मैदानावर रोशननं. आणि सलामीला गेलेला गौरव त्याला षटकार चौकारांची आतषबाजी केली होती. तो बॅक टू द पॅव्हिलियन. 6 गडी बाद झाले मैदानावर.
भूमिका 11 काणकम आणि सातेरी मातोंड. नवीन खेळाडू मैदानावर किरण आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 गडी बाद झाले. श्री स्पोर्ट देवबाग संघानं सुरुवात या मैदानावर दिमाखात केली होती. सन्मानजनक क्रिकेटकडे लक्ष द्यावं लागेल. गॉडविन आहे, गॉडविनकडे क्षमता आहे, किरणकडे क्षमता आहे, प्रत्येकाकडे क्षमता आहे, पण कार्य प्रत्यक्ष करावं लागेल. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर. सन्मान द्यायचा होता किरणला या मैदानावर. निर्धाव चेंडूची गणना होती. षटक क्रमांक 5 वाय प्रगतीपथावर दर्शन बांदेकरता नाखुश केलं मैदानावर रसिक प्रेक्षकांना. 4 या धावसंख्येवर तो माघारी परतलाय. 5 या धावसंख्येवर झेलबादच्या स्वरूपात फटका फसला दर्शनचा. कोलवट टप्प्यावर चेंडू हलक्या हाताने या ठिकाणी खेळून काढल्या. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर. परतीची पिक करतोय तोपर्यंत एकीर धावसंख्येची लार. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 50 गाठतोय श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघ. पण या मैदानाचा विचार केला तर 80-85 धावा पाहिजे आहेत. क्षमता ही गॉडविनकडे. ताकद लावावी लागेल मधल्या फळीतील फलंदाजांना, कारण 6 मोहरे संघाचे स्टार कास्टने नमस्कार केलाय आणि त्यानंतर या उभरत स्थित्यांवर जबाबदारी आली आहे. ते श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघाची प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानावर मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फटका फसलाय गॉडविनची. धोक्याची घंटा. सेफ हँड स्क्रीनवर जॉनी एस पप्पा जॉन फर्नांडिस. संघासाठी केविलवाडी परिस्थिती 7-50 आले. एका चूक आपण बघतोय. आज कार्य करायचं होतं गॉडविनला मैदानात. दर्शन लवकर माघारी परतला होता. पण सुंदर कामगिरी या मैदानावर रिलायन्स आरोंदा क्रिकेट संघाची. प्रतिनिधित्व करतो पवन साळगावकर, जॉन फर्नांडिस, कुशल पेडणेकर. रोखून ठेवले अक्षरशः श्री स्पोर्ट देवबाग या तगड्या संघाला. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर. ती या उभरते सितारेची ती हर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने घेऊन हा क्रिकेट पाहिजे. हा सुरुवातीला क्रिकेट पाहिजे. पण येणारा खेळाडू प्रत्येक श्री स्पोर्ट देवबाग संघाचा आक्रमक होतोय. षटक क्रमांक 5 व्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. सांघिक धावफलकावर 51 धावा. गडी बाद झाल्या आहेत मात्र 7. 3 षटक 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि उर्वरितच्या 18 चेंडूंमध्ये कुठेतरी 20-25 धावा पाहिजे मी म्हणेन, कारण भेदक गोलंदाजी समोर आहे दर्शन बांदेकरचे, पण समोर तगडी फलंदाजी आहे. रिलायन्स आरोंदा क्रिकेट संघासमोर शेवटपर्यंत शुभम आरोंदेकर संघाची रन मशीन आहे. जॉन फर्नांडिस आहे, पवन साळगावकर, कुशल पेडणेकर, विस्फोटक फलंदाज पाहायला मिळेल, कल्पेश पाहायला मिळेल आपल्याला. हा रणनीती आहे मैदानावर, पण कार्य करावं लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये ते श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघाला. कारण श्री स्पोर्ट देवबाग संघानं या मैदानावर एका बाजूने विचार केला. सुरुवात मैदानावर गौरवनं सुंदर पद्धतीची केली होती, पण महत्त्वाच्या क्षणी त्या ठिकाणी धावफलक चालू होता आणि ब्रेक थ्रू लावून दिले मैदानावर. त्या रोहन नाईकनं सुंदर गोलंदाजी केली. त्या षटकामध्ये फक्त धावा त्यानं दिले 1 आणि या धावा दिल्या 3 आणि गडी बाद केल्या मैदानावर. एका बाजूने विचार केला तर त्यानं 3 गडी बाद केल्या. रोहनचा मैदानावर लेखाजोगा बघायला भेटला. 4थ्या षटकात दर्शन बांदेकर माघारी परतला. त्यानंतर नितीन बांदेकर माघारी परतला. रोशनधुरी माघारी परतला 0 धावसंख्येवर. 3 धावा खर्च करत 3 गडी बाद. आता रोहन नाईकचा लेखाजोगा आणि त्यासाठी त्याला समोर लागतोय. सुंदर गोलंदाजी तो रोहन नाईक सज्ज झालाय. आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मनोहर वाटकरचा मैदानावर. प्रत्येक खेळाडू श्री स्पोर्ट देवबाग संघाचा आक्रमक बनला होतोय. संयमी क्रिकेट खेळावं लागेल मैदानावर. हे 9 खेळाडू आहेत. आपण एक मोठी स्पर्धा खेळतोय. मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2024चा क्रिकेटचा रणसंग्राम खेळतोय आपण आणि त्या रणसंग्रामामध्ये खेळताना सुंदर क्रिकेट खेळावं लागेल मैदानावर. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. सलगचे 2 चेंडू. निर्धाव. का मी एवढे दूरवरून प्रवास करून कामावर सुट्टी टाकून आजपर्यंत गावासाठी का पोचलोय याचं योगदान देण्यासाठी दाखव पाहायला मिळतो आपल्या रोहन नाईक. सुंदर गोलंदाजी सिद्धू परबनं तेच केलं. हे खेळाडू मुंबईच्या ओपन ग्राउंडला भरपूर खेळत आहेत आणि आज गावासाठी.
हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न पॉलोत्रमध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण सलगचे 3 चेंडू निर्धाव. या स्पर्धेचं पहिलं निर्धाव षटक पाहायला गेलं आहे साहिल घाटवाळच्या वतीनं. पहिली हॅट्रिक सचिन पाळजेची आपण बघितली आहेत आणि त्यानंतर मैदानावर एक सुंदर खेळाचं रूपांतर कालच्या सतरा असून जवळजवळ 123 धावांची बहारदार खेळी ही साहिल आरोलकरची. या स्पर्धेचा हा लेखाजोग आहे मैदानावर. मगाच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सुजित सावळ आपल्याला बघायला मिळालाय. आडव्या बॅटनं पटका करण्याचा प्रयत्न होता. सुरेख गोलंदाजी पुन्हा एकदा आजच्या दिवशी एका सुवर्ण हस्ताक्षरात लिहिलं जातंय की काय. रोहन नाईकचं निर्धाव षटक ते मात्र येणारा काळ ठरवतोय. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. ज्या मनोहर भाटकरला मैदानामध्ये पाठवलाय चला धावा येऊन द्या अशी स्थिती झाली या मैदानावर. चला हवा येऊन द्या अशी. फटका फसलाय मनोहर भाटकरचा. मनोहरला करावा लागेल नमस्कार. 5 चेंडू 0 धावा 1 गडी बाद केला. रोहन नाईक साठी टाळ्यांचा आवाज करूया. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर. डीजे बजाव. एका चेंडूच अजूनही खेळ बाकी आहे. गौरवची एक खेळाडू मात्र लढला मैदानावर. नवीन काहीतरी करायचं होतं आदित्यला मैदानावर. आदित्यनं सांगितलं हात दाखवून फक्त थांबा. इशारे माझे बाकी आहेत. ह्या उभरत्या सिताराला आज संधी आहे. जे काय करायचं असतं ते डगआउटमध्ये आदित्यनं जरूर केलंय. आता मैदानावर करायचंय श्रीस्पोर्ट देवबाग संघासाठी. किरण आणि आदित्य जोडी आहे. उर्वरितची स्लॉक ओव्हरची 2 षटकं बाकी आहेत. रोहन नाईक साठी सुंदर अटे टाळ्यांचा आवाज करूया. या स्पर्धेतील दुसरं निर्धाव षटक आपण पाहतोय ते रोहन नाईकचं मैदानावर. रोहन नाईक ना 2 षटकात धावा खर्च केले आहेत 3 आणि 3 गडी बाद 4 गडी बाद केले आहेत. हा रोहन नाईकचा लेखा चुकाय आहेत. 12 चेंडू त्यातील 1 षटक हे निर्धाव षटक 1 गडी बाद केलाय. त्या षटकामध्ये आताच्या षटक क्रमांक 6व्या षटकामध्ये आणि त्यानंतर या अगोदरच्या षटकामध्ये महत्वाचे त्यानं 3 गडी बाद केले आणि फक्त 12 चेंडूत या मैदानावर 3 धावा खर्च करत 4 गडी बाद केल्या. रेखा चोगा हा रोहन नाईकचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय तो हर्ष आपल्याला पुन्हा एकदा हा उभरता सितारा पाहायला मिळतोय तो रिलायन्स अरुंद क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. कोलवट टप्प्यावर चेंडू खोदून काढला. हलक्या हाताने घेऊन काढला. चेंडूला दिशा दिली आहे. एकेरी धावसंख्येवर समाधान मानावं लागत आहे. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाला आहे 52 धावा धावफलकावर. दर्शननं सांगितलं आहे कशी ही गाडी 70 पर्यंत न्या. माझ्या वेगवान गोलंदाजीनं प्रतिस्पर्धी संघाला रोखतोय पण प्रतिस्पर्धी संघाच्या रोहन नाईकनं जे ब्रेक थ्रू लावून दिले आहेत मैदानावर तर अरुंद संघानं प्रतिस्पर्धी संघाला 60 या धावसंख्येपासून रोखण्यासाठी हे शर्तीचे प्रयत्न चालू आहेत मैदानावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. उंच आहे फटका त्या मैदानावर आणि सुंदर झेल टिपलाय. जॉनी एस पप्पाय जॉन फर्नांडिस ना 9 गडी बाद झाले आहेत. श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघ
हलक्या हाताने घेऊन काढलाय नितेश. पाहायला मिळतो एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 53 धावा धावपलकावर किरण आणि नितेश ही जोडी बरोबर आहे. कार्य करावं लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. उर्वरित अजूनही 9 चेंडू बाकी आहेत. 9 चेंडूत या मैदानावर 9 चेंडूत उर्वरितच्या 2 फटके पाहिजे. मी म्हणेन ते किरणला कार्य करावं लागेल. सिस्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघासाठी 53 धावा धावपलकावर. खोलवट टप्प्यावर चेंडू मैदानावर वेगावर सॉर होऊन केलेली गोलंदाजी उभरते सितारानं ती हर्षना आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची गणना मितेश बांदेकर आणि किरण ही जोडी मैदानावर. सर्वांनी श्रीस्पोर्ट देवबाग संघासाठी आज भरपूर क्रिकेट खेळायचं होतं. गॉडविनकडे जबाबदारी होती, दर्शनकडे होती मैदानावर. नितीन बांदेकर नमस्कार केला. रोशनदुरी स्वस्तात माघारी परतलाय. मनोहर भाटकर नाराज केलाय आणि त्यानंतर शेवटची जोडी मैदानावर आपण पाहतोय किरण आणि मितेश ही जोडी मैदानावर. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आहे. फटका फसलाय मैदानावर. खराब चेंडूचा सर्व गडी बाद होत आहेत. चेंडू बाकी राहत आहेत. तब्बल सात चेंडू बाकी राहत आहेत. श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघासाठी सर्व गडी बाद झाले आहेत. सांघिक धावपलकावर 53 धावा धावपलकावर. पहिल्या 3 षटकात विचार केला 43 धावा आर्लायन्स आरोंदर क्रिकेट संघाला सहिरा वैरा करून सोडलं होतं. पण रोहन नाईक आणि हर्षनं मैदानावर अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली आणि प्रतिस्पर्धी संघाला उर्वरितच्या षटकांमध्ये कमी धावसंख्येत आहेत फक्त गडीबाद करण्याचं काम केलंय. सुंदर झेल टिपले मैदानावर. रोशन पेडणेकर, जॉन फर्नांडिसने या मैदानावर आणि त्यानंतर 53 धावा धावपलकावर. 54 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 48 चेंडू 54 धावा. 6 धावा या फक्त जास्त आहेत काढण्यासाठी. पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये दर्शन बांदेकरची भेदक गोलंदाजी आहे पण समोर तेवढीच तगडी फलंदाजी आहे. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया एक सुंदर आवाज रेडिओचा. सर अशोक नाईक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले असतील. तोपर्यंत आपण ऐकूया SS ऑडिओच्या माध्यमातून सुंदर एक सुमधुर संगीत. आपण पाहतोय महानगरम चॅम्पियन. हाँ थैंक यू डीजे, धन्यवाद योगेश परब, थैंक यू श्याम कालंगुटकर। तो चलिए मैच की ओर रुख करते हैं मैदान पर। क्या मुकाबला हो चुका है मैदान पर। 4 ओवर में 43 रन और बाद में क्या वापसी की मैदान पर रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम ने। टारगेट है मैच को जीतने के लिए सामने 54 का 54 रनों का टारगेट है। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 29 रन बनाए गौरव ने, और बाकी गेंदबाजों को तो बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। क्या गेंदबाजी रही। रोहन ने 3 विकेट चटकाए 3 रन देकर। हर्ष ने बहुत ही किफायती 3 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बिल्कुल आने वाला मैच होगा
हेलो। तो अंपायर का इशारा खेल के शुरुआत होने का मैदान पर। और मिस टाइम शॉट पॉइंट पर मौका, कैच का पहले विकेट पर पहली सफलता मिलती हुई। आइए दोनों टीम कैप्टन अगले मैच के लिए भूमिका 11 कांडका और सातेरी मातोंड क्रिकेट टीम कैप्टन आप आइए प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से मातोंड क्रिकेट टीम कैप्टन, चलिए जल्द से जल्द आपके लिए कॉल है जो कि बिल्कुल टॉस के लिए आइए जो कि दोनों टीम कैप्टन। तो पहली गेंद पर आउट होकर वापस कुशल पेडनेकर जो पहली गेंद पर उन्हीं का साथ दे रहे गुरु प्रसाद नाइक और न्यू बैटर मैदान पर शुभम अरुंदेकर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में नितेश गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि पहला ओवर जारी है पावर प्ले का। 54 का टारगेट है टोटल। ऑन साइड पर एक जोरदार अपील, गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप को मिस कर रही थी, कोई रन नहीं। एक रन जो कि बनता वो सिंगल लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक रन के साथ स्कोरिंग का खाता शुरू हुआ। 54 का टारगेट, एक रन एक विकेट पर। आइए कैप्टन जल्द से जल्द भूमिका 11 कांडका और सातेरी मातोंड क्रिकेट टीम अगले मैच के लिए दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। हाँ, पॉली पर लेकर इस बार एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ओह कैच छूटा। ये कैच होना चाहिए था, ये कैच पकड़ना चाहिए क्योंकि आपके पास टारगेट वो नहीं है जो कि अब 80-90 आपने नहीं बनाए हैं। बिल्कुल 4 ओवर में 43 रन और क्या बाकी के 11 रनों में बिल्कुल पारी को सिमट दिया मैदान पर। और सामने गुरु प्रसाद स्ट्राइक पर, तो शुभम को मौका मिल चुका है। गुरु प्रसाद हल्के से कट किया गेंद को, इस बार गली पर फील्डर, बहुत सुंदर थ्रो और अंपायर का कॉल हो रहा है जो कि तीसरे अंपायर के साथ जरूर देखा जाएगा। मेरे ख्याल से जिस तरह से डायरेक्ट हिट गेंद लगी है कुछ ना कुछ बिल्कुल गड़बड़ है जो कि इस थ्रो के साथ देखना होगा क्या हुआ मैदान पर। लेकिन आइए प्लीज एक बार लास्ट कॉल भूमिका 11 कांडका और सातेरी मातोंड क्रिकेट टीम आपके लिए आखिरी बिल्कुल कॉल। तो देखा जा रहा है क्या हुआ मैदान पर। बिल्कुल टेनिस क्रिकेट .in की टीम जो कि इस टूर्नामेंट के साथ मंदरिम चैंपियंस ट्रॉफी के साथ टेनिस क्रिकेट की जो कि पूरी टीम इस प्रतियोगिता के साथ बहुत ही शानदार जो कि अपना योगदान दे रही है और उन्हीं का सहारा बिल्कुल जो कि देखना होगा क्या हुआ मैदान पर। जो कि एक अच्छा थ्रो था, रन के लिए निकले थे, सीधी गेंद स्टंपों पे लगी थी और लगभग मेरे ख्याल से देखना होगा क्या हुआ मैदान पर। तो बिल्कुल आउट, शानदार थ्रो, बहुत अच्छी फील्डिंग मैदान पर। कम टोटल का मुकाबला है लेकिन शुरू में 2 विकेट चटकाते हुए रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम थोड़ी सी नाजुक अवस्था में मैदान पर दिखाई देते हुए टीम के साथ हमेशा के बिल्कुल टीम के अब्बास आतोस्कर, उन्हीं के साथ उमेश तानावड़े, ये भी आ चुके अपने टीम के साथ जो कि बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं अपने टीम को। और देखना होगा एक नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा स्कोर बोर्ड पर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर और न्यू बैटर नए बल्लेबाज रोशन पेडनेकर मैदान पर। एक बहुत अच्छा ओवर रोशन पेडनेकर का। आज इस प्रतियोगिता में दूसरा जो कि मेडन ओवर देखने को मिला मैदान पर रोहन के द्वारा। कल के दिन में साहिल गाटवल राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट टीम की ओर से कल हैट्रिक देखने को मिली ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम की ओर से सचिन पाटजी और इसी बीच न्यू बैटर मैदान पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पुलर लेन की गेंद, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग। विकी फर्नांडिस बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग। निश्चित रूप से गेंद निकल सकती थी जो कि बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बहुत शानदार विकेट कीपिंग। बॉलिंग बार पर मितेश अगली गेंद लेकर ऑन साइड पर खेला, फिर से
हेलो, थैंक यू डीजे। टॉस हो रहा है आने वाले मैच का। भूमिका 11 कांडका और सातेरी मातोंड, और टॉस जीत चुके हैं सातेरी मातोंड क्रिकेट टीम, फील्डिंग कर रही है। थैंक यू। तो भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी को मौका दिया है। 8 ओवर का मैच होगा, 2 ओवर पावर प्ले, तीसरे से छठे तक एक बैटिंग पावर प्ले। आपको टोटल 40 मिनट, 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है। और जो लाइन बिल्कुल डगआउट के सामने देख रहे हैं, जब बल्लेबाज आउट होगा तो नए बल्लेबाज को उस लाइन से पहले अंदर, जो कि बल्लेबाज आने से पहले अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए। बल्लेबाज को कोई मैच में हैंडल द बॉल, आपको बॉल हाथ में बिल्कुल लेने की मुबाद नहीं है दोस्तों। इसी बीच में गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सामने आदित्य अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है जो जॉन फर्नांडिस। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, हल्के से ढीले हाथों से टैप किया गली की तरफ, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 54 का टारगेट है, लेकिन सामने प्रशंसा करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी गेंदबाजी मैदान पर कर रही, गेंदबाजी के साथ फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही है श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट टीम। हाँ, पाली पर लेकर एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई, लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर। दर्शन बांदेकर ने बिल्कुल कोशिश बढ़िया की थी, लेकिन गेंद थोड़ी से हाथों से बिल्कुल लगती हुई गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए बड़ी देर के बाद एक बड़ा आगाज मैदान पर बल्लेबाजी में, और इन 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज गुरु प्रसाद और नॉन स्ट्राइकर एंड पर लेफ्ट हैंडर जॉन फर्नांडिस। छोटे गेंद इस बार हुक किया, गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, आउटफील्ड बहुत तेज है, लगभग सीमा रेखा से अंदर गेंद को रोका फील्डर ने। बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। 2 रन पूरे के, तीसरे के लिए पलटे, ओवर थ्रो। क्या चौथे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, ओवर थ्रो के साथ 4 रन मिल गए टोटल स्कोर के खाते में। लेकिन मैं फील्डर को पूरा जो कि क्रेडिट दूंगा, क्या फील्डिंग की थी, शानदार। आखिर तक गेंद का पीछा किया था, एक लगभग 2 रन बचाए थे, लेकिन ओवर थ्रो रहा और उसी का फायदा मिला। जब तक गेंद को बैकअप कर रहे थे तब तक और 2 रन, यानी टोटल मिले 4 रन स्कोर के खाते में। तीन विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 54 का, 54 रनों का। अच्छी गेंद इस बार बहुत ही सूझबूझ की, पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, दूर है फील्डर। जब तक आते गेंद को उठाते, थ्रो करते विकेट के ऊपर के हाथों में। ये क्रिकेट है दोस्तों 8 ओवर का, ये 8 ओवर का क्रिकेट है। 43 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन मैं कहूँगा जो कि श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट बिल्कुल भूल गए कि क्रिकेट सिंगल डबल के साथ भी होता है। बड़े शॉट के बिल्कुल मोहजाल में फंस गए और वहाँ पर 43 से लेकर 53 पर, यानी 10 रनों पर बिल्कुल आने वाले सभी बल्लेबाज वापस लौटे। सामने गेंदबाजी अच्छी रही। 3 विकेट खोने के बाद जॉन बिल्कुल अनुभव उनका जो कि बता रहे मैदान पर कि किस तरह से बल्लेबाजी, और वो बल्लेबाजी मैदान पर 2 बहुमूल्य रन और स्कोर पहुंचा 21, लॉस ऑफ 3 विकेट।
21 रन 3 विकेट पर। धीमी फेंकी गेंद आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया। ओहो, ये बिल्कुल गलती कर बैठे, ये गलती कर बैठे। मेरे ख्याल से जॉन रन के लिए निकले हाफ वाले पर। अच्छी फील्डिंग, गेंद दूर नहीं थी। मेरे ख्याल से ये जॉन बिल्कुल अपने आप पर मुसीबत ले गए और एक विकेट चला गया। चौथे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 21 लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे आप जरूर संपर्क कर सकते। भोजन बिल्कुल व्यवस्था हो चुकी है वहाँ पर ताता रेस्टोरेंट में। उन्हीं के साथ कलिंगन नारियल का पानी है, मिक्स जो कि भाजी है, ऑमलेट पाव है, ये बिल्कुल आपको मिल सकती है वहाँ पर। ताता रेस्टोरेंट बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में राइट साइड पर वो कैंटीन ताता रेस्टोरेंट वो शुरू है। अच्छी गेंद ऑफ साइड पर हल्के से खेला, रनआउट का खतरा। जी नहीं, क्या तेज थ्रो किया था फील्डर ने सिलिमुडा पर। शायद विकेट कीपर बिल्कुल उस थ्रो के साथ जरूर चोटिले हो चुके हैं, मैदान पर परेशान हो चुके हैं। एक तेज थ्रो था, नॉन स्ट्राइकर पर भी बिल्कुल मौका बन सकता था रनआउट का, लेकिन इसी बीच में एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 22 लॉस ऑफ 4 विकेट। जॉन फर्नांडिस स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का थोड़ा सा फील्डिंग को सेट कर रहे हैं मैदान पर। एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन साइड पर, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑफ साइड पर, एक थर्ड मैन, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जैसे देखा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर दर्शन बांधे कर आ रहे गेंद को बिल्कुल फील्ड कर रहे, थ्रो कर रहे। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 101 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 23 लॉस ऑफ 4 विकेट। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर 31 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और इस ओवर के बाद अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है। छोटी गेंद इस बार पुल के ऑन साइड पर, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहा था। थ्रो जरूर किया था लेकिन गेंद हाथों में नहीं थे बिल्कुल। अंपायर चौकर ने निगाहें रखे हुए मैदान पर। योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर, उन्हीं के साथ सर रुपेश गावस उर्फ बालो, ये अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर। उन्हीं के साथ सर सुशांत सालगांवकर कमेंट्री बॉक्स में, योगेश परब, श्याम कलंगुटकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, कुमारी त्रिवेणी सावंत और इन सभी के साथ tenniscricket.in की पूरी टीम, गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम, SSDJ और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत इस दोपहर के सत्र में। मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी ऑल गोवा सिंधुदुर्ग म्युनिसिपैलिटी पंचायत टीम आज का दूसरा दिन, कल का पहला दिन। ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला सिलवड़ा पर। फील्डर जब तक थोड़ा सा ढीले हाथों से खेला था जॉन फर्नांडिस ने, 1 रन और जुड़ गया। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 25 लॉस ऑफ 4 विकेट। 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे
और सामने से एक बार फिर से दर्शन बांदेकर आ चुके हैं, जो कि गेंदबाजी करने के लिए एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी। कौन बोलेगा, बिल्कुल हाल ही में समाप्त हुआ मैकलन स्पोर्ट का मूली चषक का एक बहुत ही सुंदर आयोजन, और उस जो कि टूर्नामेंट में बिल्कुल छा गए थे दर्शन बांदेकर, और वो खिलाड़ी मैदान पर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने एक बिल्कुल अनुभव क्रिकेट के साथ जॉन फर्नांडिस, और हल्के से टैप किया इस बार गली पर। अच्छा थ्रो, लेकिन गेंद नहीं लगी स्टंपों पे, एक सिंगल बन गया। इस मैच में लगातार 2-3 बार रनआउट के मौके जरूर निकले मैदान पर। एक रन इस बीच में स्कोर के खाते में, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 26 रन पर पहुंचा। दर्शन बांदेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर फील्डिंग में परिवर्तन, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये चौड़ गोली डीप स्क्वायर लेग बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। ये 3 फील्डर है ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर। तेज गेंद इस बार, बड़ी रफ्तार के साथ गेंद ऑफ स्टंप पर, खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्ट्राइक पर गुरु प्रसाद बल्लेबाजी कर रहे, एक चौका एक छक्का अब तक लग चुका है गुरु प्रसाद की बल्लेबाजी में, और वो सामना कर रहे आने वाली गेंद का, अगली गेंद का। ओवर पिच गेंद, फ्रंट फुट पर गेंद को हल्के से पुश करना चाहते थे ऑफ साइड पर कवर की तरफ, देखा था कवर पर बिल्कुल खाली है, जो फील्डर है वो बाउंड्री लाइन पर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और एक शॉर्ट कवर पॉइंट पर फील्डर है। और यही बिल्कुल सोच थी गुरु प्रसाद की कि एक सिंगल बना जाए, जॉन को ज्यादा मौका दिया जाए, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। और इस बात का कुछ बिल्कुल कोई खास समझ नहीं पाए, कैच का मौका निकला, विकेट कीपर थोड़ी सी बाउंसर उछाल लेती हुई गेंद, और सही ढंग से के साथ जो कि खेल नहीं पाए गुरु प्रसाद। सफलता मिलती हुई 5वां विकेट खोते हुए रिलायंस अराउंडा क्रिकेट टीम 55, जो कि 54 का टारगेट है, सामने बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जो कम टोटल का मैच है, लेकिन मुकाबला बिल्कुल बेहतर मैदान पर चलता हुआ। ठीक है, का तो सातेरी मातोन दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत इस मंद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी में। नए बल्लेबाज मैदान पर कल्पेश, फुल टॉस, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए। डीजे यॉर्कर करना चाहते थे, लेकिन फुल टॉस कर बैठे, और बल्लेबाज ने आते आते फायदा उठाया, चौका लगाया। ये तेज गेंद, लेकिन लाइन पर बट के लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और एक रन जुड़ गया रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 31 रनों पर, 31, 31 रन 5 विकेट पर। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, थोड़ी सी उछाल, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल और एक ओवर यानी 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31, 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डीजे
चुके हैं और बैटिंग पावर प्ले का इशारा। आदित्य आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। बैटिंग पावर प्ले का ओवर, 3 फील्डर अब बाहर होंगे और देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। आदित्य आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर जॉन फर्नांडिस जो उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। इस बार लेग स्टंप पर फाइन लेग बाउंड्री पर स्विच हिट। जॉन के बल्ले से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन उनसे पहले गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी के साथ चर्चा करेंगे आने वाले बिल्कुल 1, 2, 3 मार्च को। और एक हेवी बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है जो वेदांत 11 हरमल जिनकी ओर से ये टूर्नामेंट हो रहा है। किरण पानी मैदान पर जो टूर्नामेंट हो रहा है, आप ये टूर्नामेंट का भी बिल्कुल जो कि आप सहभागी हो सकते हैं और उन्हीं के साथ दर्शक भी जुड़ सकते हैं। वेदांत 11 हरमल की ओर से 1, 2 और 3 मार्च को। 4 रन जॉन के बल्ले से। आदित्य अपने बॉलिंग मार्क पर और स्विच हिट, लाजवाब शॉट। गेंद चले गई सीमा रेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। डीजे के साथ अब उल्टा फेर हो चुका है जो कि गेंदों और रनों के बीच में। बहुत ही बेहतरीन शॉट। जॉन बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर, एक सूझबूझ का क्रिकेट। और इस बड़े शॉट के साथ स्कोर आगे निकला 41, 41 रनों पर। अब चाहिए सिर्फ 13 रन मैच को जीतने के लिए। आगे निकलकर हाफ वॉली पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं। एक बार फिर से गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और थोड़ा सा जो कि फासला कम हो गया रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम के सामने। 4 रन और जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। टारगेट था 54 रनों का। सामने हमारे बिल्कुल बॉल बॉयज वो भी दिखाई दे रहे। आकाश उर्फ डंबा, बिल्कुल अच्छा योगदान आकाश उर्फ डंबा आपका भी इस टूर्नामेंट के साथ। लेकिन चलिए, आपको भी भूख लगी है दोस्तों, चलिए बिल्कुल ताता रेस्टोरेंट के साथ जुड़ जाइए। पुलर लेन की गेंद हल्के से अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार बिल्कुल नाजुक अवस्था थी रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम की। 8 रन 3 विकेट पर। तब ये 54 का टोटल बहुत दूर का मामला लग रहा था, लेकिन जॉन की सूझबूझ के क्रिकेट मैदान पर 2 चौके 1 छक्का सामना कर रहे अगली गेंद का। ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और मिस फील्डिंग। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। जी बिल्कुल लेग बाइज का इशारा और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। मेरे ख्याल से अब मैच बिल्कुल छोड़ चुके हैं मैदान पर श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम। लेकिन क्या कहानी श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम की। क्या बिल्कुल एक बार जो कि उनका स्कोर ठीक ठाक था। 4 ओवर में 43 रन थे और उस 4 ओवर के 43 रनों के बाद लगातार विकेटें खोई टीम ने। चार रन मैच को जीतने के लिए। और इन मौके पर फिर से एक सफलता मिलती हुई श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम को। लेकिन थोड़ी सी मैं विकेटों की कहानी आपके लिए जानकारी जरूर दूंगा। पहला विकेट 5 पर था जो कि श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम का, वहीं से लेकर एक साझेदारी बनी, बड़ी साझेदारी। दूसरा विकेट 42 पर, लेकिन तीसरा, चौथा, 5वां विकेट लगातार 47 पर, छठा विकेट 49, 7वां विकेट 50, 8वां विकेट 51 पर और वहीं पर 53 रन पर जो कि बिल्कुल पूरी पारी समाप्त हुई। तो ये था लेखा जोखा। दूसरा विकेट 42 पर, यानी आने वाले सिर्फ मैं कहूँगा कि 11 रनों में लगातार 8 विकेट खोए श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही जो कि रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम की। स्कोर रुका हुआ टोटल 50 रन। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर पप्पन सारगांवकर ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम के। तो दोनों टीमों का बिल्कुल स्वागत एक बार फिर से भूमिका 11 कनका और सातेरी मातोंड इस टूर्नामेंट के साथ। और गेंदबाजी में परिवर्तन, किरण आ चुके हैं गेंदबाजी के
और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया अतिरिक्त रन के साथ स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 51 पर, 5 विकेट पर 51 रन। जॉन फर्नांडिस आउट हुए 20 रन बनाकर, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया जॉन ने। और हाफ वाले पर लेकर एक वाइड लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। और इसी के साथ मैच को जीतती हुई रिलायंस आनंद, आपका अभिनंदन और श्री स्पोर्ट देवबा क्रिकेट टीम। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल कहूंगा 42 रन 2 विकेट पर, और आने वाले 12 गेंदों में 12 रनों में आपने 8 विकेट खोए। बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा ये अच्छी बल्लेबाजी। 2 विकेट पर 42 और आपकी पूरी टीम 53 पर रुक गई मैदान पर। तो ये था लेखा जोखा, और 500 रुपए का इनाम आ चुका है जो हमारे आबा सातोस्कर की ओर से